જય સ્વામિનારાયણ. આપણા સૌના જીવન પ્રાણ એવા ગૃહરી કાકાજી મહારાજના સેવક, કાકાજીના ગુણાતીત અને આપણા સૌના સુહૃદ, પરમ મિત્ર અને સેવક એવા પરમ પૂજ્ય અરુણભાઈ કાકાજીના ચરણમાં બિરાજી ગયા છે અને એમની અખંડ સ્મૃતિ આપણી સાથે ચિરંજીવ થઈ ગઈ છે. એવા અરુણભાઈના કેટલાક પ્રસંગો હું આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું. સૌથી પહેલી ઓળખાણ અરુણભાઈની પરમ પૂજ્ય ભરતભાઈએ કરાવી હતી. ભરતભાઈએ પત્ર લખી કાકાજીના દરેક સેવકની ઓળખાણ કરાવી. તેમાં અરુણભાઈની આગવી સેવક તરીકેની ઓળખાણ આપી હતી. એટલે અરુણભાઈ પ્રત્યે ત્યારથી અમને ખૂબ માન હતું. ત્યાર પછી કાકાજી સ્વધામ પધાર્યા અને સૌથી પહેલાં પૂજ્ય બાપુ અરુણભાઈ અને રમેશભાઈ સોનીને લઈને પેરિસ પધારેલા. તે વખતે થોડો અરુણભાઈ જોડેનો અનુભવ હતો. તે વખતે અરુણભાઈ ખૂબ જ સાદાઈથી રહેતા હતા. એમની પાસે પગમાં પહેરવા માટે બૂટ પણ નહોતા અને અમે એમને બૂટ લેવા માટે ખૂબ કહ્યું, પરંતુ બાપુની એવી ઈચ્છા હતી કે આપણે ખોટા પૈસા નથી ખર્ચવા અને અમેરિકામાં સસ્તા બૂટ મળે ત્યાંથી લઈશું. એટલે અમારી સાથે જેટલો સમય રહ્યા, ઠંડીનો સમય હતો, છતાં અરુણભાઈ અને રમેશભાઈ ચપ્પલ પહેરીને અમારી સાથે ફર્યા હતા. અમે જોડે સભા કરી હતી. સભાની અંદર રસોઈ બનાવવાની હતી તો અરુણભાઈએ જાતે રસોઈમાં મદદ કરી, પૂરીનો લોટ પણ બાંધી આપેલો. તે વખતે કોઈને એવું નહોતું લાગતું કે અરુણભાઈ અહીં બહારથી આવેલા છે કે મહેમાન છે. અમારી સાથે અમારા જેવા થઈને જેમ પવઈમાં કે તારદેવમાં જેમ સેવા કરે એમ જ સેવા કરતા અને અમારી જોડે ભળી જતા. તે વખતે અમને અરુણભાઈનો ખૂબ ગુણ આવેલો. ત્યાર પછી બીજી વાર જ્યારે અમે 1992માં યોગી શતાબ્દીમાં ઇન્ડિયા આવ્યા, ત્યારે પહેલાં દિલ્હી આવેલા અને ત્યાંથી અમારી છપાઈની યાત્રા પૂજ્ય દિનકરભાઈ બાપુ સાથે થયેલી. તે વખતે અરુણભાઈનો ખૂબ અનુભવ થયો. તે વખતે અરુણભાઈ અને પૂજ્ય પલ્લુભાઈ બંને સેવક તરીકે હતા. અમને બધાને ટ્રેનમાં સરસ રીતે બેસાડી અમને દરેક પ્રકારની સર્વિસ એવું આપતા. સમયે સમયે ખાવાનું, સમયે સમયે પીવાનું, થોડી થોડી પૂછવા આવે તમને કંઈ તકલીફ નથી, ઓઢવાનું કેમ છે, બીજું ત્રીજું. અને એ રીતે અરુણભાઈ અને પલ્લુભાઈ બંને અમારા સૌ પેરિસ મંડળ અને શિકાગો મંડળ અને ઇન્ડિયાથી જે આવેલા એ બધા જ ભક્તોની આખી રાત જાગીને એમણે સેવા કરેલી. એ સેવા આજે પણ અમારી નજર સમક્ષ છે. એ વખતે અરુણભાઈ અને પલ્લુભાઈ સેવામાં હતા અને સંજોગવશાત એવું થયેલું કે પૂજ્ય દિનકરભાઈનો ફર્સ્ટ ક્લાસની અંદર બુકિંગ હતું અને અમારા બધાનું સેકન્ડ ક્લાસ રિઝર્વ હતું. પણ કંઈક કારણસર દિનકરભાઈને સેકન્ડ ક્લાસમાં જર્ની કરવાની થઈ. તે વખતે અમને પણ એવું લાગતું હતું કે દિનકરભાઈ સેકન્ડ ક્લાસમાં તો અમે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં કેવી રીતે જર્ની કરીએ, અને એટલા માટે અમને ખંચકાટ હતો અને અમે પણ એવો આગ્રહ રાખતા કે અમારે પણ ફર્સ્ટ ક્લાસમાં નથી રહ્યું. તે વખતે અરુણભાઈએ એક સરસ સુહૃદ ભાવનું અને સરળ સેવકની વાત કરીને અમને પ્રોત્સાહન આપેલું કે પ્રવીણભાઈ, આપણે સ્વરૂપલક્ષી સરળતા અને સ્વરૂપલક્ષી સુહૃદ ભાવ રાખવાનું એવું કાકાજી આપણને શીખવાડ્યું છે. તમે દિનકરભાઈ સાથે જાઓ એના કરતાં અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તમને જ્યાં મૂકે ત્યાં તમે જાઓ એ વધારે સરળતા કહેવાય, એ ઊંચો સેવક ભાવ કહેવાય. આપણે એવી રીતે જીવીએ તો કાકાજી રાજી થાય. અને તે વખતે એ શબ્દ અમારા જીવમાં બેસી ગયો કે સ્વરૂપલક્ષી સરળતા અને સ્વરૂપલક્ષી સુહૃદ ભાવ. કે જ્યારે સુહૃદ ભાવ રાખવાનો હોય કે જ્યારે સરળતા રાખવાની હોય તે વખતે બીજું ત્રીજું કાંઈ જોવાય નહીં અને બધાને અનુકૂળ થાય તે રીતે આપણે જીવી લેવું.
આ વખતે આખી ટ્રીપમાં અરુણભાઈએ અને પલ્લુભાઈ અમારી ખૂબ સેવા કરેલી, અમને કોઈ પ્રકારની તકલીફ નહીં પડવા દીધેલી. છપૈયાની અંદર પણ ઉતારાની અંદર નાવા ધોવા બીજું ત્રીજું બધું જ એમણે સરસ રીતે સંભાળી લીધેલું. અમને કોઈને એવું લાગતું નહોતું કે અરુણભાઈ કોઈ સાધક ભાઈ છે, પણ એવું જ લાગતું હતું કે કોઈ સેવક છે અને બધાનું ધ્યાન રાખવા માટે જ એમને અહીંયા રાખેલા છે. એટલી હદે એમનો સેવક ભાવ અમારા સૌ જોડે રહેતો અને છતાંય અમારા પરમ મિત્ર બનીને રહેતા હતા. ત્યાર પછી તો 96ની અંદર અમે ઇન્ડિયા ગયેલા. તે વખતે ભરતભાઈને કોઈકે મંદિર આપ્યું હશે, તો એ મંદિર એમણે અમને આપવાનું નક્કી કરેલું. એટલે અરુણભાઈને એમણે કહ્યું કે આ મંદિર સરસ રીતે સજાવીને તૈયાર કરી અને આપણે પ્રવીણભાઈને આપવાનું છે. અને તે વખતે ભરતભાઈએ અમને સૌને સાંજના સમય લાઇટ બંધ અને બધાને ધ્યાનમાં બેસાડ્યા. અને અરુણભાઈ ચૂપકીથી મંદિર સરસ રીતે શણગારી, મૂર્તિને બધું જ તૈયાર, આજુબાજુ હોંસનું ડેકોરેશન કરી અને મંદિરની અંદર લાઇટ મૂકી અને બધાની વચમાં મંદિર એવી રીતે મૂકી દીધું કે જ્યારે આંખ ખોલી ત્યારે અમને બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આટલું સરસ મંદિર ડેકોરેશનવાળું, અને એમાં પણ મૂર્તિ સર્વદેશીય મૂર્તિ, એ જોઈને અમને બધાને ખૂબ આનંદ થયો. અને એ મૂર્તિ અમને, એ મંદિર અમને ભરતભાઈએ ભેટ આપી. તે વખતે દીદી બોલ્યા કે અરુણભાઈ આ મંદિર સરસ છે, પરંતુ આ બધું જે ડેકોરેશન છે ચાંદી કલરનું, એને સાફ સફાઈ કરવાની ને બહુ માથાકૂટ, એનો તો થોડી વખત પછી કલર જતો રહેશે. ત્યારે અરુણભાઈ પરાભમ આવીને બોલેલા કે જાઓ દીદી, એનો કલર કોઈ દિવસ જશે નહીં. અને આજે પણ એ મંદિરમાં એ જે ડેકોરેશન છે સિલ્વર કલરનું, એ એવું ને એવું જ છે. કઈ મેટલ છે અમને ખબર નથી, પણ અરુણભાઈના આશીર્વાદને પ્રતાપે મંદિરની અંદર જે ડેકોરેશન સિલ્વર કલરનું આજે પણ એવું ને એવું જ ચળકાટ મારે છે. તે વખતે પણ અરુણભાઈ પ્રત્યે અમને ખૂબ જ પ્રેમ અને માન થયેલું. ત્યારબાદ 1998માં અમે ઇન્ડિયા આવેલા. તે વખતે ભરતભાઈ વશીભાઈ ત્યાં હતા નહીં, અને અમને રિસીવ કરવાની જવાબદારી અરુણભાઈની હતી. તો તે વખતે અમે જેવા તારદેવ સોનાવાલા બિલ્ડિંગના પગથિયા ચડીને ઉપર ગયા તો અમને એકદમ આશ્ચર્ય થયું. એકદમ સરસ લાલ કલરની સાદડી પાથરેલી અને આજુબાજુ ફૂલના કુંડાઓ લગાવેલા અને રેડ કાર્પેટની સર્વિસ. અમે તો ત્યાં એકદમ ઊભા રહીને ખચકાઈ ગયા કે આ શું છે, આપણાથી કેવી રીતે જવાય. ત્યારે અરુણભાઈ તરત જ બોલ્યા કે આ આપને માટે જ છે અને આપણે આના પરથી જ પાસ થવાનું છે. અને ત્યાર પછી હું એ લાલ કાર્પેટ પરથી પાસ થઈને મંદિરના મેઇન હોલમાં આવેલો, અને દીદી ખંજકાટથી સાઈડ પરથી પહેલાં કે બીજા રૂમની અંદર જતા રહેલા. પણ તે વખતનું દ્રશ્ય આજે પણ ગેલેરીનું બરાબર યાદ છે. એવી સરસ રીતે સાદડીનું ડેકોરેશન કરીને લાલ કલર કરેલો અને આજુબાજુ ફૂલો, અને એ સુશોભિત જાણે કોઈ ભવ્ય રેડ કાર્પેટની સર્વિસ અમને આપી હોય એ રીતે મંદિરની અંદર પ્રવેશેલા. ભરતભાઈની જે રુચિ હતી, ભરતભાઈની જે ઈચ્છા હતી, એને અનુકૂળ એમણે સરસ રીતે અમારું સ્વાગત કરેલું. એ સ્વાગત આજે પણ અમને એકદમ યાદ આવે છે. ત્યાર પછી 1 મહિનો અમે મંદિરમાં રહેવા માટે ગયેલા, અને તે વખતે અમે 1 મહિનો પૂરો મંદિરમાં રોકાયેલા. વસીભાઈ જોડે, ભરતભાઈ જોડે વિચરણમાં જતા. તે વખતે ગણેશ ઉત્સવ હતો, એટલે રોજના કોઈકના કોઈ ઘરે જવાનું રહેતું. તે વખતે અરુણભાઈ અમારી એટલી બધી સેવા કરેલી, અમને ખબર જ નહોતી કે અમારા કપડાં ક્યારે અરુણભાઈ લઈ જતા, ક્યારે ધોઈને અસ્ત્રી કરીને અમારી બેગ પર મૂકી દેતા, એ અમને ખબર જ નહોતી પડતી.
વળી દિવસમાં 2-4 વાર પૂછે, પ્રવીણભાઈ કોઈ તકલીફ નથી, કંઈ તમને જોઈતું કરતું હોય તો કહેજો. વળી જમવાના ટાઈમે પણ ખાસ યાદ કરીને બોલાવે અને જમાડે, જાણે કોઈ માં પોતાના છોકરાઓનું ધ્યાન રાખતા હોય એ પ્રમાણે અરુણભાઈ અમારું ધ્યાન રાખતા હતા. અને પૂરો 1 મહિનો અરુણભાઈએ અમારી એટલી બધી સેવા કરેલી કે અમને ઘર પણ યાદ નહોતું આવતું. 2013માં પેરિસમાં પરમ પૂજ્ય કાકાજી અને પરમ પૂજ્ય પપ્પાજીનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. તે વખતે અરુણભાઈ, મીનાબેન અને સર્વ ભાઈઓ અને બહેનો સેવામાં 15 દિવસ 3 અઠવાડિયા વહેલા આવી ગયેલા. એ વખતે સમયો કેવી રીતે કરવો, કેવી રીતે તૈયારી કરવી, અમે ખૂબ જ અવઘડમાં હતા. પણ અરુણભાઈ આવ્યા અને એમણે જે ઠાકોરભાઈને ત્યાં રોજના 100 માણસનું જમવાનું અને બધું એવું સરસ રીતે ગોઠવી દીધું, એવી તૈયારી કરી દીધી. જાતે અમારી જોડે ફર્યા, ખરીદી કરી અને અમને ખબર પણ ના પડવા દીધી કે આટલી બધી વ્યવસ્થા કેટલી સરસ રીતે થાય. ઉતારા પાગરણ બધાની વ્યવસ્થામાં અરુણભાઈ અમને ખૂબ મદદ કરી કે કોણ ક્યાં ઉતરી શકે, કોને કોની સાથે ફાવશે, એ બધું જ અરુણભાઈએ એવું સરસ રીતે કહી દીધું કે અમે એકદમ નિશ્ચિંત થઈ ગયા. સમય વખતે અરુણભાઈ હંમેશા સ્ટેજની પાછળ બેસતા. એમની સ્પેશિયલ જગ્યા હતી, ત્યાં જઈને બેસી રહેતા. અને અમારે જ્યારે પણ એમની જરૂર પડે કે કંઈ પણ તકલીફ હોય કે મૂંઝવણ હોય ત્યારે અમે અરુણભાઈ પાસે ત્યાં પહોંચી જતા અને અરુણભાઈ પાસે એનું સોલ્યુશન લઈ લેતા. આમ આખા સમયની અંદર અરુણભાઈને એટલી બધી વાર અમે ઉશ્કેરડા કર્યા છે અને નાની નાની બાબતમાં અરુણભાઈને પૂછીને અમે બધું કરતા તો અમારું બધું કામ સરસ થયું અને સમય પણ સરસ ઉકળી ગયો. ત્યાર પછી પણ અરુણભાઈ જોડે અમારે કાયમ મુંબઈમાં વર્ષમાં 2-4 વાર જવાનું થાય અને દર વખતે અરુણભાઈને મળવાનું થાય. અરુણભાઈ જોડે અમારે એટલો ખાસ દિલનો સંબંધ ખરો, પણ જોડે રહેવાનો સંબંધ બહુ ઓછો, કારણ કે અમારે ભરતભાઈ વસીભાઈ જોડે વધારે રહેવાનું હોય. અને છતાં અરુણભાઈનો સેવક ભાવ એવો કે કાયમ સેવામાં કોઈને કોઈ સેવામાં ઓતપ્રોત રહે, કંઈ કિચનમાં સેવા કરતા હોય યા ડેકોરેશનની સેવા કરતા હોય, સ્ટેજ પર સેવા કરતા હોય, તે વખતે અમને પણ એમ થાય કે અરુણભાઈને થોડી મદદ કરીએ. એટલે અમે અરુણભાઈને મદદ કરવા માટે જઈએ તો અરુણભાઈ તરત જ કહે કે ના પ્રવીણભાઈ, આ અમારી સેવા એ અમારે કરવાની અને તમારી અલગ સેવા. ભરતભાઈ વસીભાઈ જોડે તમારે રહેવું, એમની જોડે સ્ટેજ પર બેસવું એ તમારી સેવા, અને એ જે સત્સંગ કરાવે એમાં તમે એમને મદદરૂપ થાવ એ તમારી સેવા. એટલે આપણે બંનેની અલગ પ્રકારની સેવા અને આપણે બંને આપણી સેવામાં સરસ રીતે જોડાઈ જવું. આમ અરુણભાઈ કોઈ પણ નાની મોટી સેવા હોય એ સેવા અમને કરવા નહીં દેતા. અને જેમ ભરતભાઈનો વસીભાઈનો મહિમા સમજે તેમ અમારો પણ એ રીતે જ મહિમા સમજતા. આપણા સૌના એ મિત્ર, આપણા સૌના એ પ્રેરણામૂર્તિ, આપણા સૌના એ આદર્શ એવા આપણા પૂજ્ય અરુણભાઈ, બાળકોના પૂજ્ય અરુણ કાકા આપણી વચ્ચે છતી દેહ નથી, છતાં સ્મૃતિઓ સાથે, સેવાની સ્મૃતિઓ સાથે આપણી જોડે જ છે. આપણે આજે સંકલ્પ કરીએ કે જ્યારે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ ત્યારે અરુણભાઈને યાદ કરીને અરુણભાઈ જે રીતે સેવા કરતા એ રીતે કોઈક ને કોઈક સેવામાં જોડાઈ જઈએ. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સાંઈ મહારાજની છે. અરુણભાઈના ચરણોમાં લાખ લાખ કોટી કોટી વંદન. જય સ્વામિનારાયણ. सदानंद स्वामी महाराज की जय। अरुण भाई ऐसे थे जैसा जिसका अंग वैसा उससे सेवा देते थे। मैं पवई जाता था, अरुण को पूछता था कुछ सेवा है तो मुस्कुराते थे और कहते थे बच्चे हैं ना। शताब्दी ड्रामा के प्रैक्टिस के लिए मैं पवई जाता था। तो एक दिन सुबह 8 बजे के आसपास अरुण भाई मेरे पास आए, बोले कि आपको आज महापूजा की सेवा करना है, हितेन भाई आउट ऑफ स्टेशन है। मैं तैयार हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद अरुण भाई फिर से आए, बोले कि हितेन भाई आ गए हैं, आपको ड्रामा के प्रैक्टिस के लिए जाइए। मेरा दूसरा प्रसंग यह है कि हम औरंगाबाद डेकोरेशन के लिए
मटेरियल लाते थे। उसके लिए मैंने 10,000 रुपये अरुण भाई के पास रखे थे और बाद में करीबन 2 साल हम मटेरियल नहीं ला सके। तो अरुण भाई हर वक्त मुझे पूछते थे मटेरियल का क्या हो गया। ऐसे वो इतने बिजी शेड्यूल में भी याद रखते थे। यह उनका गुण हमें लेना है और हम भी ऐसी सेवा में ध्यान रखना है। यही चरणों में अरुण भाई के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। सजानंद सोमनाथ की जय हो। 12 तारीख को जैसे सुबह सुबह अरुण भाई के समाचार सुन के बहुत दुख हुआ। अनएक्सपेक्टेड, विश्वास ही नहीं हुआ। उनके साथ बहुत सारे अनुभव है। साल सवा साल तारदेव रहा था उनके साथ में। जैसे अपन सत्संग में पवई जाते हैं और हर फंक्शन में अरुण भरत भाई धुन कराते हैं 1 मिनट की प्रवचन शुरू होने से पहले। तो एक संकेत होता है कि सबसे पुण्य ले ले दूर दूर से आए 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर से जो भी आए भगत उनसे पुण्य करवा ले, ये भावना रहती है उनकी। ऐसे ही अरुण भाई की भावना रहती है कि जो भी आए भगत उनसे थोड़ी सेवा करवा ले ताकि वो यहाँ आए तो धर्म के स्थान पे आए, कुछ पुण्य का काम हो जाए। चाहे वो यहाँ से कुर्सी उठा के वहीं रखे, कुछ भी एक छोटी मोटी सेवा भी एक पुण्य का काम हो। मैंने अरुण भाई को बहुत सेवा करते हुए देखा। मैत्री मिलन महोत्सव में वो मेरे को सेवा बोलते बोलते सुबह सो रहे थे 9-10 बजे के बाद। तब उनको सोने का भान नहीं रहता, कब सोने, बस सेवा करते रहना जब तक फाइनल नहीं हो जाए। मुझे बहुत कुछ सीखा वजह से, कैसे सामान लेके आना, भाव कराना और अच्छी चीज़ लेके आना, चाहे सब्जी हो चाहे कोई भी सामान हो, मस्जिद से तस्वीर बनानी हो। अरुण का तो बहुत याद आता है। बस यही प्रार्थना है कि मेरे में मैत्री भाव बहुत कम है। अरुण भाई से प्रार्थना है कि मैत्री भाव पक्का हो जाए। हमारी भरत भाई वशु भाई से मेरा प्रार्थना है आप सब साथ रहे। मैं कभी अगर पवई नहीं जाता हूँ, बहुत टाइम से बीच में नहीं गया, तो पूछते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या बात है, और हमेशा पूछते हैं खाना खा के जाना। हमें अपनत्व की भावना बताते हैं, मतलब अपना ही लगता मंदिर। तो भूले चुके कोई गलती हो गई माफ़ करना अरुण भाई, तो भरत भाई उसी के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, સર્વને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અરુણભાઈ એટલે અમારે માટે પવઈના ડોન, કે મસ્ટ લવેબલ પર્સન. જે લવેબલ પર્સનનો ફેઝ છે એ સેકન્ડ ફેઝમાં આવે. ફર્સ્ટ ફેઝમાં તો અરુણભાઈ સાથે બધાને એવું થઈ જાય કે આ કોણ છે એમ. એટલી સેવા કરાવે કે નવો માણસ ત્રાસી જ જાય, ભાગી જ જાય. ને સેકન્ડ ફેઝમાં જ્યારે બરોબર એમની સાથે હસીને વાતમાં ને જે આપણની સાથે જોક કરે ત્યારે આપણને ખાસ પ્રેમ થાય કે ઘણા મોટા પુરુષ છે. સૌથી વધારે મારે અરુણભાઈ સાથે મેઇન વ્યવહાર સેવામાં અને પૈસા લેવા કરવાનું કાંઈ પણ હોય, સૌથી મને હિસાબ લખાવવાનું શીખવાડ્યું હોય તો અરુણભાઈ. જ્યારે 2009માં હું આવ્યો પવઈ, પછી ધીરે ધીરે મારે ઘનશ્યામભાઈ શેઠ સાથે રહેવાનું ચાલુ થયું, એટલે પૈસા લેવા દેવાનું બધું ચાલુ થાય. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મને પૈસા આપ્યા હિસાબ, પછી મેં એમને હિસાબ કઈ રીતે કે જેટલા હતા પૈસા એ આપી દેતા કે આટલા વધ્યા છે. એટલે તરત જ ગુરુ આવી રીતે ના હોય, હિસાબ આમ ના લખાય, આવો બેસો એમ કરીને બેસાડીને શીખવાડ્યું કે આવી રીતે કોણે આપ્યા છે, કેટલા પૈસા એ લખવાનું, કોને ક્યાં ખર્ચ્યા, ક્યાં ક્યાં ગયા, પેટ્રોલના કેટલા થયા, જમવામાં શું થયું, બીજે કંઈ વાપર્યા હતા, એ બધી જ ડિટેલ લખવાની. ઠાકોરજીના પૈસા છે, આપણે 1 રૂપિયો પણ એમાં ઓછો ન થવો જોઈએ. અને અરુણભાઈનું સૌથી વધારે ખાસ જોયું હોય તો ભજનિક. એ ભજન એમનું એટલું પંચ્યુઅલ ટાઈમિંગ કે સવારે આરતીમાં 7 વાગે આરતી થાય એ પહેલાં 6:30 અચૂક આવી જાય મંદિરમાં.
6:30 થી 7 સુધી ધૂન ચાલુ એમની. આરતી થાય, આરતી થયા પછી પણ ધૂન ચાલુ થાય, એમ એ ધૂનમાં બેસે. 7:30 આરતી પતે પછી નીચે આવે ને નાસ્તો કરે. સેમ બપોરે 4 વાગે ઠાકોરજીના દર્શન ખુલે એટલે અચૂક 4 વાગે ત્યાં હાજર જ હોય. ઠાકોરજીના દર્શન ખુલે એટલે પાછી 1 કલાક ધૂન કરવાની, 5 વાગ્યા સુધી ધૂન કરે. સાંજે નીચે આવે 7 વાગે એટલે આરતી, આરતીમાં પણ એ હાજર હોય. મીનાબેનના ટેબલ પાસે જ્યાં એક પલંગ પણ ના આવી શકે ત્યાં નીચે તકિયો નાખીને સૂઈ જાય. આપણે એમ કહે કે અરુણભાઈ રૂમમાં સૂવો તો ના, મારે હમણાં હિસાબ કરવાનો છે તો હું અહીંયા સૂઈ લઉં છું, 1 જ કલાક છે ને એટલે અહીંયા તકિયો નાખીને ખાલી સૂઈ જાય. ક્યારે પણ એમનો રોજ બર્થડે હોય, કોઈ પણને આવીને હિસાબ લેવાનો એટલે ગુરુ ટુડે ઇઝ માય બર્થડે. બર્થડે કે એટલે સમજી જવાનું કે આપણે એમને હિસાબ આપવાનો છે. એટલી બધી મેમરી આપી છે ને અરુણભાઈને કે યાદ કરવા બેસીએ તો કે આપણે હરેકની સાથે એમણે પર્સનલ ટચ આપ્યું છે અરુણભાઈ. કે કોઈને ન મળ્યા હોય કે એવું નથી, હરેકને મળ્યા, હરેકને એવી સ્મૃતિઓ આપી છે અરુણભાઈએ. ગુરુ જ્ઞાત તોય કોઈની સેવા નહીં લીધી. ક્યારે પણ કહીએ તો પૂછીએ કે અરુણભાઈ તમને કયું ગીત ગમે, એટલે એમની અદામાં ગાય, આમ ચાલુ કરે એક જ ગીત, એ હર ટાઈમ એક જ ગીત સંભળાવે બધાને. ફૂલ તું મેં બેજા એવી રીતે સંભળાવે ને બધાને હસાવે. અરુણભાઈ ગયા નથી, ત્યાં જ છે, આપણી વચ્ચે જ છે, હરેકના દિલમાં જ છે. એ ત્યાં જ છે, કિચનમાં જ છે. એ ત્યાં કબાટ આગળ જે સૂતા હતા ત્યાં જ અરુણભાઈ હજી પણ ત્યાં જ છે. એ કબાટની હરેક આખો કબાટ જ પ્રસાદીનો છે. કે એ જે ચાવી આપતા હતા કોઈને પણ પૈસા લેવા જવાનું તો કે કાલે લઈ આવ, એ ચાવી પણ પ્રસાદીની, એ પણ એ અરુણભાઈ જ છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજનું છે. सहजानंद स्वामी महाराज मुझे अरुण भाई सेवा की मूर्ति थे. उनका रिलेशन हर एक भक्त के साथ अलग तरह का था. वो चाहे छोटा सहज हो या फिर कोई बड़े भक्त हो. अगर ये संत जो है उनके सामने अगर हम सरल हो जाए तब वो हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं. हम हर बार पवई में बाल शिविर के वक्त जाते थे तब कुछ सेवा करते थे वहाँ पे. और एक्चुअली मैं घर पे कुछ भी काम तब नहीं करती थी, बट मैं वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ मुझे जितना हो सके उतनी सेवा करती थी. एक बार मुझे और सुप्रिया दीदी को झाड़ू पोछा की सेवा मिली. तो वो झाड़ू मार रहे थे और मैं पोछा मार रही थी. तब मुझे पोछा मारना नहीं आ रहा था, मैं ट्राई कर रही थी. तब वहाँ पे अरुण भाई आए. उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि आपको झाड़ू पोछा करना नहीं आता है. तब मैंने सरल होकर उनको बताया कि मुझे झाड़ू पोछा नहीं आता है. तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बाद में 10th की छुट्टियों के वक्त मैं जब पवई गई थी, चित्रा आंटी के वहाँ पे मेरा रहना हो गया तब वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, डस्टिंग करना, ये सब सीख लिया. उसमें ट्रेन हो गई. तो ऐसे ये संत है जो अगर उनके सामने अगर हम सरल हो जाए तो वो हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं. ऐसे ही हम हर एक सेवा में परफेक्ट हो जाए, ऐसी उनकी चरणों में, अरुण भाई के चरणों में प्रार्थना. सहजानंद स्वामी महाराज. ભજીલે ભગવાન સાચા સંત ને મળી, હે ભજીલે ભગવાન સાચા સંત ને મળી, હે સંત ને મળી સાચા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની થઈ. અરુણભાઈના સાનિધ્યમાં મને ઘણી બધી સેવાની તકો મળી. એમાં તારદેવ, પવઈ, ભાઈ બહેનોની સેવા, મમ્મી બા, વસીભાઈના મમ્મી પપ્પાની, અને કે હોસ્પિટલ રસોડાની હોય કે પછી વેકેશનમાં અથાણા કે વર્ષભર અનાજની હોય. મારો અનુભવ
કે સેવા નિમિત્તે ક્યારે પણ મેં જોયું અરુણભાઈની મીઠાશ. એક જ વાત મને બહુ ગમે, વાણી એક સેવા પતે કે બીજી સેવામાં જવું હોય તો સરળ, ભાભી હવે આ સેવા મૂકી બીજી સેવામાં જવાનું છે, એમ બીજી સેવા ક્યારે પતી જાય એનો ખ્યાલ ના આવે. અરુણભાઈના નામમાં જ એક બે શબ્દનો અક્ષર સમાયો છે કે ઋણ, જે આપણે ક્યારે ચૂકવી શકીએ નહીં. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. जय स्वामीनारायण. अरुण भाई का महिमा गुण क्या गाए हम. अरुण भाई सभी प्रकार की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते थे, उनमें कोई भी त्रुटियां नहीं रहती थी. एक बार मेरा भी ऐसा हुआ कि मैंने उलन के फूल के हार बनाए थे और उस वक्त समर चालू था और मैंने अरुण भाई को दिखाए कि मैंने ये हार बनाए हैं मूर्तियों के लिए. तो उन्होंने सहज भाव से कहा, इनसे तो काका जी को गर्मी लगेगी, आप ये मत पहनाओ उनको. और मैंने उनसे ठीक है कहा. दूसरा एक प्रसंग है कि ऐसे ही मैंने और एक हार बनाए थे मूर्तियों के लिए. उसमें मैंने प्लास्टिक के फूल डाले थे. तो हार बनाने के बाद मैंने उनको दिखाया कि मैंने ये हार बनाए. तो उन्होंने वैसे ही मुझे कहा कि ये तो काका जी को चुभेंगे फूल. तो मुझे इतना ये हुआ कि अभी भी वो काका जी को प्रकट मानते हैं और हम सोच भी नहीं सकते इतना वो धारते हैं उनको. वैसा हम भी भरत भाई, वशी भाई को धार सके, उनको राजी कर सके, ऐसी अरुण भाई के चरणों में प्रार्थना है. सहजानंद स्वामी महाराज की. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. परम पूज्य अरुण भाई की पहचान होनी बहुत ही मुश्किल है. ऐसे छुपे सेवक, साधु, निर्मानी, निराभिमानी, निर्दोष सेवक भाव, स्वामी सेवक भाव और ऐसे कई गुणों से युक्त जो सच में दासानुदास कहे, ऐसे अरुण भाई. उनका अक्षरधाम गमन हम सब युवकों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हमको मिला, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ मिला जो हम सब युवक कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते. मगर अरुण भाई, उनकी अनुभूति हमें हर पल सदैव हमको मिलती रहेगी, क्योंकि पूज्य अरुण भाई हम सब छोटे थे तब से हमको मेंटर किया है. हमको सेवा किस तरह से करना, कौन से भाव से करना, किस तरह से सभी हरिभक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा करना, ये सब बातें हमें सिखाई. हम छोटे थे, लगभग 12-13 साल के, तब हम 10वीं के और फिर बाद में 12वीं के वैकेशन में ऐसे सब स्कूल के वैकेशन में हम तारदेव रहने के लिए जाते थे. वो समय पे अरुण भाई तारदेव में सारी सेवा करते थे. मैंने खुद ने देखा है कि अरुण भाई खुद सभी जो भी वहाँ पर तारदेव में रहते थे, वो सभी साधक हो या भक्त, सभी के कपड़े अरुण भाई खुद धोते थे. फिर बर्तन घिसने की सेवा हो, या फिर झाड़ू लगाने की सेवा हो, या फिर सबके कपड़े ठीक से रखने की सेवा हो. जब इस्त्री करने के लिए कपड़े भेजते हैं तो सारे कपड़े गिनने की सेवा हो, सब्जी लाने की सेवा हो, ग्रोसरी लाने की सेवा हो, सारी सेवाएं अरुण भाई अपने एक अकेले के कंधे पे वो करते थे. कोई हरिभक्त आते थे, कोई हरिभक्त जाते थे. हम लोग वैकेशन में आते थे तब थोड़ी सेवा हमारे पास करवाते थे, मगर बहुधा सारी सेवा अरुण भाई अपने कंधों पर लेते थे. ये हमने अपनी आंखों से देखा है. साथ में अरुण भाई सभी हरिभक्तों के साथ, सभी युवकों के साथ, सभी बच्चों के साथ ऐसा सुमेल रख के रहते थे. सबके साथ ऐसा आनंद से
उनके साथ घुल मिल जाते थे। हम सब युवक थे तो हमारे साथ घुल मिल जाते थे। कभी कुछ हमारे पास सेवा करवाई तो बाद में हमको उसका रिकम्फर्ट भी देते थे। हमको आम खिलाते थे, हमको आइसक्रीम खिलाते थे, हमको घूमने के लिए भेजने की व्यवस्था करते थे। ऐसा सब अरुण भाई करते थे। तारदेव में हम जब रहते थे तब अरुण भाई ने मुझे झाड़ू लगाना सिखाया, बर्तन साफ करना सिखाया, कपड़ा किस तरह से धोना वो सिखाया। तो ये सारी चीज़ें सिखाई। फिर तारदेव में इतने सारे भक्त रहते थे, इतने सारे संत रहते थे, तो सबकी व्यवस्था किस तरह से करना वो सब मैंने अरुण भाई से, उनके पास से देखा है। तारदेव के लिए, मंदिर के लिए सब्जी लाना, ये सब करने की सेवा भी अरुण भाई ने मुझे, ऐसे छोटे थे 12-13 साल के, तब भी उन्होंने मुझे ऐसी सेवाएं सौंपी थी। तो जिससे लेकर वो जो तारदेव में अरुण भाई ने जो मुझे ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग मुझे आज भी काम आती है। तो जब भी ऐसे कुछ काम करते हैं तो अरुण भाई की सहज में याद आ जाती है कि ये सेवा अरुण भाई इस तरह से करते थे, तो मुझे भी ये सेवा करनी है। एक बार थोड़े साल पहले मेरे ससुराल के ओर से कोई फ्रेंड्स यहाँ पर रहने के लिए आए थे पेरिस में, और सब कुछ खाना वगैरह खा के फिर सब हो गया, तो मैं वहाँ पर साफ सूफ करके झाड़ू लगा रहा था। तो वो भाई मुझे कहने लगे कि भाई ये आप यहाँ पर झाड़ू क्यों लगाते हो? तो सहज में मुझे अरुण भाई की याद आ गई और मैंने बोला कि ये झाड़ू लगाना, ये हमारा घर मंदिर है और ये मंदिर की मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसा सहज में निकल गया। तो उनको सहज में ऐसा इम्प्रेशन अच्छा लगा कि भाई ये भी एक कोई चीज़ है, क्योंकि वो खुद ने कभी घर में अपने झाड़ू नहीं लगाया होगा। ये मेहमानों के सामने, ससुराल वालों के सामने मैं झाड़ू लगाऊं। तो ये सब अरुण भाई की ट्रेनिंग का प्रताप है। जो पेरिस में काका जी पप्पा जी का शताब्दी का समय हुआ, उसमें भी अरुण भाई का सिंह फाड़ा था। अरुण भाई ने इतनी सारी सेवाएं, लगभग 95% सारी चीज़ें इकट्ठा करके इंडिया से यहाँ पर भेजी थी, इस तरह से मैनेज करके भेजी थी कि जिसमें हमको अरुण भाई न होते तो ये पेरिस का समय होना असंभव था। हमने फिजिकली नो डाउट सेवा की, मगर जो अरुण भाई ने जो बेस हमको वहाँ पर खड़ा करके दिया, इससे ये समय होना मुमकिन हो सका। फिर बाद में अरुण भाई यहाँ पर आए तो जो भी हम सेवा कर रहे थे तो उसमें अपना गाइडेंस देकर ये पेरिस का समय सर्वोपरि हुआ, वो देखा। दूसरा, अरुण भाई की जो अरुण भाई का सेवक भाव है, काका जी को राजी करने का भाव है, उनका ऐसा सर्वदेशीय अप्रोच हमको बहुत अपील करता है। यहाँ पर जब समय हुआ काका जी पप्पा जी शताब्दी का, तो अरुण भाई की ऐसी भावना थी कि हरिप्रसाद स्वामी जी आ रहे हैं, तो उनके लिए हमको ऐसा फूलों का कारपेट करना है कि आए तो उनका स्वागत हम फूलों के कारपेट से करें। फूल का कारपेट तो क्या है, 2 मिनट 5 मिनट हरिप्रसाद स्वामी जी वहाँ से चल के आएंगे और अपने आसन पे जाकर बैठ जाएंगे। मगर अरुण भाई का ये भाव था कि हमको ऐसा करना है, तो वो उस तरह से उन्होंने अरेंज करवाया और वो किया। तो वो एक भावना काका जी को राजी करने की, स्वामी जी राजी होंगे तो काका जी राजी होंगे, वो भावना उसमें सहज दिखती है कि इस तरह से पूरा अरेंज करके इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बात हम भूल गए थे, तो अरुण भाई ने हमारे पास से वो सेवा करवाई और अरुण भाई राजी हो गए कि भाई हाँ, स्वामी जी के लिए हमने कारपेट बनाई और स्वामी जी वहाँ पर से चले। तो एक अरुण भाई का ये जो सेवक भाव है, जो गुरु को राजी करने का भाव है, वो बहुत ही दिल को छू जाता है। हम तारदेव में रहते थे तो सहज में वहाँ पर अपने 8C में मम्मी बा रहते थे, तो मम्मी बा की सेवा करना, मम्मी बा के पास कुछ लेना ले जाना, ऐसा। तो मम्मी बा से हमको बहुत डर लगता था, क्योंकि मम्मी बा हमको हमेशा सब अरुण भाई कुछ काम करने भेजते थे, तो मम्मी बा सबको बहुत डांटती थी। तो वो डांट से मुझे बहुत डर लगता था, हम तो छोटे थे। तो अरुण भाई को एक बार बोला, अरुण भाई मम्मी बा तो डांटती है। तो बोला नहीं बेटा, चिंता नहीं करने का, अरुण मम्मी बा डांटे तो हंसना, बोला मम्मी बा प्रसाद तो दो, मुझे सुखड़ी दो। तो ऐसा मैंने अरुण भाई को देखा कि भाई मुझे सुखड़ी खिलाओ करके, तो वो मुझे जज गया। तो मम्मी बा के साथ जब भी अरुण भाई कुछ काम करने के लिए भेजते थे, तो मैं मम्मी बा को बोल, मम्मी बा प्रसाद दीजिए ना, ऐसा क्या करते हो? तो मम्मी बा एकदम हंस देती थी और उनका सारा जो फेस का हाव भाव था, ऐसा लगता था कि ये हाव भाव उन्होंने क्रिएट किया है और वो छूमंतर हो गया, और फिर अचानक से हंसने लगते हैं और वो हंसते हंसते हमको वो प्रसाद देती है। तो इस तरह से जब भी फिर बाद में मैं जाता था मम्मी बा के पास, तो पॉजिटिव भाव अपने आप आ गया। तो जब भी मैं जाता था तो मम्मी बा मुझे कुछ नहीं कहती थी, वो सिर्फ बोलती थी अरुण ने भेजा है,
चलो ये ले जाओ, ये ले प्रसाद तेरे लिए, बंटा गोड़ी, ऐसा करके वो प्रसाद जो अरुण भाई के लिए रखते थे तो मुझे भी देते थे। तो इस तरह से मम्मी पापा का ऐसा अनुभव हुआ, उनका महिमा इस तरह से अरुण भाई की वजह से मालूम पड़ा। तो ऐसे अरुण भाई सहज में ऐसी सेवा करवाते थे, जो भाव हमको लाना चाहिए सेवा करने में वो भी सिखाते थे और हमको आनंद भी कराते थे। तो आज ये सारे हम सारे युवक, आज दर्शन भाई हो या फिर निर्भीक भाई हो, पीयूष भाई हो, विमल भाई हो, मितेश भाई हो, ऐसे सब जो युवक है वो आज मुझे लगता है कि अरुण भाई ऐसे इस देह से उनका न होना वो हमारे लिए हमको वो बहुत हम उनको बहुत मिस करेंगे। मगर दूसरी ओर से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भरत वशी भाई ने हमको सूत्र दिया है कि लेट्स लिव अरुण भाई, तो आज मैं देखता हूँ कि अरुण भाई यहाँ से गए ही नहीं है। अरुण भाई हमारे साथ में ऐसे अखंड है ही। आज मैं मितेश भाई को देखता हूँ तो मुझे अरुण भाई दिखते हैं, आज विमल भाई को देखता हूँ तो अरुण भाई दिखते हैं, पीयूष भाई को देखता हूँ अरुण भाई दिखते हैं, चिमन महाराज को देखता हूँ अरुण भाई दिखते हैं, ताई को देखता हूँ अरुण भाई दिखते हैं, हरकचंद भाई को देखता हूँ अरुण भाई दिखते हैं। क्योंकि ये सब जो अरुण भाई जिस तरह से सेवा करते थे, जो भाव से सेवा करते थे, तो वो भाव ये सारे हरिभक्तों में आज रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि वो सब अरुण भाई की देन है कि सेवा का मूर्तिमान स्वरूप कहा जाए तो ऐसे अरुण भाई है। तो अरुण भाई गए तो एक दो दिन मुझे भी थोड़ा ऐसा सैडनेस लगा, लेकिन आंसू भी आए। फिर ऐसी प्रेरणा हुई कि अरुण भाई की याद को आंसू से क्यों बहाए। ये अरुण भाई हैं, उनको आंसू से बहाने की बजाय हमको उनको अपने अंदर धार कर वो अरुण भाई को हमेशा हमारे जीवन में जीवंत रखना है। अरुण भाई जिस तरह से सेवा करते हैं वो सेवा अरुण भाई की प्रेरणा लेकर, क्योंकि अरुण भाई तो ऐसे देह से थे तब सिर्फ एक जगह पे थे, मगर अभी तो व्यापक में है। तो हम जहां पर भी जाएंगे अरुण भाई को याद करेंगे तो अरुण भाई सचमुच में हमें ऐसी प्रेरणा देंगे और उनको याद करके हम ऐसी सेवा कर पाएंगे कि जिस तरह से अरुण भाई ने काका जी महाराज को राजी किया, उसी तरह से हम भी अपने गुरु हरि को राजी कर पाएंगे। अरुण भाई के सेवक भाव का एक मैं दाखिला देता हूँ। तारदेव में हम छत पे क्रिकेट खेलते थे, सब दर्शन भाई, नीरज भाई, हितिन भाई, नितेश भाई, मैं, हम सब वहाँ तारदेव में ऊपर टेरेस पे क्रिकेट खेलते थे। तो उसमें रन लेते लेते मेरा पैर में मचकोड़ आ गई और मैं चल नहीं पा रहा था। तो अरुण भाई को बताया तो अरुण भाई ने खुद ने मेरे लिए गर्म पानी लाए, बहुत गर्म पानी लाए, उसमें नमक डाला, फिर मुझे बोला बेटा अंदर वो बाल्टी में पानी है उसमें अंदर पैर डालो, मैं तुमको आयोडेक्स से मसाज करके देता हूँ। तो इतने गर्म पानी में लगभग 55-60 डिग्री गर्म पानी था जिसमें अपने को जलन होती है। मेरा तो पैर था, पैर में तो जलन कम होती है, मगर अरुण भाई अपने हाथों से वो बाल्टी के अंदर मेरा पैर को 1 घंटे तक मसाज किया। तो जो मोच आई थी वो मोच वैसे ठीक होने में हफ्ता 15 दिन लगेगा, वो मुझे 3-4 दिन में मोच ठीक हो गई। तो क्या अरुण भाई ने वो भाव से सेवा की थी। मैंने अरुण भाई को क्या क्या करते नहीं देखा है, सब टॉयलेट भी साफ करते देखा है, सब जो पूरा तारदेव मंदिर का तब व्यवहार संभालते थे। तो रात को सब लोग सो जाए तब 11 बजे काका जी की रूम के बाजू में जो खोली है जहाँ पर सबके कपड़े वगैरह रखते थे, छोटी सी खोली में, इतनी छोटी सी जगह में ऐसा सिकुड़ के बैठते थे और शांति से बैठ के अपना हिसाब लिखते थे और हिसाब किताब लिख कर दूसरे दिन सुबह भरत भाई के हाथ में देते थे। फिर वो तो सारा रात को 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रोग्राम चले। फिर उनकी सोने की जगह क्या थी, तो तारदे में जो हमारा जूता चंपल रखने का जो पैसेज है, तो पैसेज में जूते चंपल का स्टैंड पहले, फिर चिमन महाराज का गद्दा बिछता था और बाद में अरुण भाई का। तो वो पैसेज में जहां पर 12 महीने अरुण भाई वहां पर सोते थे, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हमेशा उनका डबल कंबल वो ओढ़ लेते थे, अपना चौरसा, और वहां पर सो जाते थे पैसेज में। तो रात को सबसे आखिरी सोते थे अरुण भाई, अपना सारा वो काम निपटा के फिर बाद में अपना भजन कर लेते थे। हमेशा
जब भी वो भजन करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता, इतना इनग्रोस होकर भजन करते थे कि वो जब भी करते थे तो पूरा मतलब 1 घंटा 2 घंटा वो भजन में इस तरह से धुन करते थे, भजन गाते थे। अभी जो पीयूष भाई ने हमारे साथ वो अरुण भाई का भजन वाला वीडियो शेयर किया, वो देखकर मुझे वो तारदेव के दिन ही आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुधा अरुण भाई को तारदेव में ही इस तरह से देखा है। तो वो एक जो स्वभजन की, स्वाध्याय की जो अरुण भाई की रीत थी, वो भी एक अनोखी थी। वो हमेशा दिल को छू जाती है। और हमेशा अरुण भाई छिप के रहते थे, कहीं पर भी जो भी कोई प्रोग्राम होता था, इतनी सारे समैया, भजन संध्या, ये सब करते थे, तो अरुण भाई ने हमको डेकोरेशन करना सिखाया, किस तरह से साड़ियों से डेकोरेशन करना, किस तरह से क्या करना। तो ये सारा अरुण भाई के वजह से हमें सब सीखने को मिला। और जब भी ये सारा प्रोग्राम होता था तो अरुण भाई पीछे सबसे आखिर में बैठते थे, कोने में। तारदेव में महापूजा होती थी तो काका जी की रूम की और जो पीछे सोफा के बाद में जो दरवाजे के पीछे कोना होता था, वहां पर अरुण भाई बैठते थे। सभा होती थी तो कोने में बैठते थे, कभी सामने नहीं आते थे। वो ऐसा काका जी का साक्षात स्वरूप है, इतना उनके पास इतना अद्भुत और अविस्मरणीय ऐसा काका जी का ज्ञान था, जो उन्होंने अपने जीवन में पचाया था, उनके वर्तन में था। और ये सारा ज्ञान हमको धीरे धीरे करके देते थे कि बेटा यहाँ पर हमारी भूल हुई है, इसको हमको इस तरह से जीना है, हमको इस तरह से सच्ची जीने की राह दिखाने वाले ऐसे अरुण भाई। आज परम पूज्य अरुण भाई के चरणों में, भरत भाई, वशी भाई, बापू, दिनकर दादा, गुरु जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से अरुण भाई जीवन जिए, ऐसी प्रेरणा अरुण भाई हमें हमेशा देते रहे। और अरुण भाई की राह पे चलकर हम दास का दास बन के हम जीवन जी पाए और सभी भक्तों की ऐसे महात्मा से हम सेवा कर पाए, ऐसे हम सबको आशीष देना ऐसा आज आप सबके चरणों में प्रार्थना है। परम पूज्य अरुण भाई के चरणों में प्रार्थना है कि आप हमेशा 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 हमारे हृदय में अखंड जीवंत रहना और हमको प्रेरणा देते रहना कि जिस तरह से आपने काका जी को राजी किया, सभी स्वरूपों को राजी किया, वैसे हम भी अपने स्वरूपों को राजी कर पाए, आपको राजी कर पाए और आपको प्राउड फील हो कि ये युवकों जिनको मैंने सेवा करना सिखाया आज इस तरह से सेवा करते हैं। तो आप काका जी के पास बैठकर वो देखकर बहुत ही राजी होते हो, राजी होते रहे कि हाश ये अच्छी सेवा हुई। और आज तो मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ पर अरुण भाई दिखते नहीं हैं, मगर आज वो इतने सारे स्वरूप हमको अरुण भाई के मिल गए कि जिसमें से रहकर आज अरुण भाई इस तरह से सेवा अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी भक्तों को, सभी अरुण भाई के सभी स्वरूपों को आज कोटि कोटि वंदन और परम पूज्य अरुण भाई के चरणों में भी साक्षात दंडवत प्रणाम के साथ जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अरुण भाई स्मृति पारायण की जय। अरुण भाई के बारे में मतलब हम तो फर्स्ट मैं तो पहले समन्वय महोत्सव में आया था पवई, जब तो बहुत छोटा था तो कुछ याद नहीं है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मैत्री मिलन महोत्सव में आया, जब मैं पहली बार अरुण भाई को मिला था, जब अरुण भाई किचन में सेवा कर रहे थे समय के इधर। जब भी मैं बहुत छोटा था, मतलब मुझे इतना नहीं समझता था और मैं जब नया जैसे ही था। फिर 2010 से जब बाल शिविर स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा जाना स्टार्ट हुआ, तब से मैं अरुण भाई के साथ अरुण भाई को जान पाया था। फिर वैसे हम लोग मेरा जाना हुआ फिर पवई, और हम वैकेशन की छुट्टियों में भी वहाँ जाते थे पवई, तो अरुण भाई के साथ सेवा करने का मौका मिलता था। तो जब सेवा करते थे तब कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था। और जब भी इधर आता था, पेरेंट्स बोलते थे कुछ तो नया सीख के आए, कुछ सेवा सीखा। और हम लोग की फैमिली की पहले से कंडीशन बहुत ख़राब थी, पर जैसे हम सत्संग में आ गए हम लोग का पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। और उसमें भी हम लोग को जितने बार भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आता था मैं अरुण भाई से शेयर करता था। इधर भी हम सेवा करते हैं मंदिर में, तो हम लोग करते करते ऐसा मुझे तो बहुत अहंकार जैसा आ जाता था। तो मैं उधर जाता था, अरुण भाई से बात करता था इस बारे में। तो अरुण भाई ने मुझे समझाते थे कि हम लोग को सेवा कैसी करनी है, क्या करनी है,
कौन से भाव से करनी है और हम किस लिए सेवा कर रहे हैं और किसको राजी करने के लिए सेवा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे होते गया। फिर भी अभी भी थोड़ा है, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि अर्जुन भाई ने जैसा मुझे समझाया है मैं वैसा सेवा कर पाऊँ और वो भाव से कर पाऊँ। और फिर मैं जब भी दिवाली में जाता हूँ समैया में या कोई भी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, तब भी मैं मतलब उधर सेवा करने का मौका मिलता है अर्जुन भाई के साथ। तो हम अर्जुन भाई को देखते हैं, वो इतना थक जाते हैं फिर भी सेवा करते रहते हैं। जैसे अन्नकूट की जब सेवा रहती है वो पूरा नाइट भर हम लोग की सेवा चलती है, तब अरुण भाई को इतना मतलब थक जाते हैं कि इतने दिन से सेवा चलती रहती है, फिर भी वो रात को पूरा रात भर जग के अन्नकूट में सब भक्तों का जो भाव जो रहता है, जो प्रसाद बेचते हैं वो भगवान के सामने रखते हैं। और वो जब तक पूरा सब सभा अरेंजमेंट वगैरह पूरा हो नहीं जाता है तब तक वो आराम को नहीं जाते हैं। हम कई बार उनको बोलते हैं आप चाहिए आराम के लिए, बच्चे कर लेंगे, पर वो बोलते सेवा होने के बाद ही। और फिर हम लोग उधर ही सो जाते हैं। और फिर जैसे हम लोग उठते हैं मतलब 5 बजे सो के हम लोग 6 बजे उठते हैं, तो अरुण भाई फ्रेश एकदम हो जाते हैं और आरती में भी पहुंच जाते हैं और हम लोग को आने तक लेट हो जाते हैं। वो तो महापूजा में मतलब अरेंज करने भी लग जाते हैं, कोई रहो या मत हो वो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं। और समय में बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम लोग तो सेवा में रहते हैं, फिर भी बहुत से भक्त आते रहते हैं, फिर भी मतलब हम लोग मतलब जब अरुण भाई का तो इतना ध्यान रहता है कि वो लोग आए तो पहले उनको खाना खिलाओ, फिर उनका रहने का जो है उनको आराम करने भेजो। मतलब हम लोग को तो बोलते ही है कि आप चेक करके आओ उधर खाना है या नहीं है। मतलब वो भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं कि वो मतलब पहले आए खाना खाए, या मतलब हम तो सेवा करते ही है फिर भी मतलब और वो सबसे लास्ट में खाना खाते हैं। पहले हम सब बच्चों को पूछते हैं आपने खाना खाया, नहीं खाया तो फिर आप चलो, एकदम सबका होने के बाद वो खाना खाते हैं। फिर अभी एक और एक प्रसंग है कि लास्ट टाइम औरंगाबाद आए थे जब नीलकंठ वर्णी की मूर्ति प्रतिष्ठा की काकाजी महाराज उज्जैन में, तो उस समय दिनकर भाई का आना मतलब वो भी एक सरप्राइज हम लोग को मिला था। भरत भाई ने एक सरप्राइज दिया था, तो वो सरप्राइज मतलब फिर हम लोग को जब लास्ट का दिन था, जब समय पूरा हो गया था, हम लोग खाना खाने बैठे थे लास्ट में, तो हम लोग को लास्ट में भी वो बता के गए कि मतलब आपको कैसे सेवा करनी है, क्या करनी है। जब हम लोग संतों को परोसते तो कैसा परोसते हैं। तो फिर हमको लास्ट मोमेंट पे मतलब हम लोग खाना ही खा रहे थे तो हम लोग को पूरा वो समझाया और अभी बोले कि अभी ये सब मतलब सेवा आपको अच्छे से करनी है और भाव से करनी है और सबसे करवा के लेनी है, या ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को ही करना है, सब लोग को ही बोल के ही करना है बोले। और फिर जब जा रहे थे औरंगाबाद से तब मतलब मुझे जहाँ तक याद में है कि वो मतलब ऐसा बाय बाय नहीं करते कभी, और उस टाइम हमको पूरा ऐसा हाथ से बाय बाय किया और एक स्माइल दिया था। वही आज मतलब बहुत याद आ रही है उनकी वो एक पिक्चर, जो लास्ट की जो दर्शन थे उनके, लास्ट जो दर्शन थे वही दर्शन आज बहुत याद आ रहे। सजानंद सर महाराज की जय स्वामीनारायण। Jai Swaminarayan. This is such a big shock. I don't know what to say, but I have very fond memories of Arun Bhai. When I was younger, मैं मंदिर जाती थी दोपहर को for दिवाली डेकोरेशन सेवा, because we had Diwali vacation, so in the afternoon हम जाते थे, and Yogini Ben was there. Yogini Ben, Meena Ben, Arun Bhai would all discuss what has to be done, and a few of us would go there to do seva for decoration. I remember once everything was set up and ready, and I think धनतेरस दिवाली शुरू हो गई थी, so mom and me went, and अरुण भाई सामने से आए and he told mom, देखो अम्मू ने बनाया सब decoration. I was just a teenager then, I hadn't really done much. Similarly, this other time
mom had gone on some yatra with Bharat Bhai and Madhuri Ben. So Yogini Ben told me कि you don't bother cooking at home, शाम को मंदिर आ जाना. So I went शाम को, and Raju Bhai Bhatt was there at that time. He and I think शाम को इडली का प्रोग्राम था. तो Raju Bhai Bhatt came to me and he said खीरा है, तू डोसा बनाएगी? तो I said हाँ. So I think Maharaj or Meena Ben must have made the khira. So I went and made dosa, and even Arun Bhai ate. I think he was one of the last people to come and eat. And this was in the old kitchen, the smaller kitchen in Pawai Mandir, not the current one. So he came and he ate. And again, the next time he saw mom, he made it a point. He went to her and he said, Ammu ne dosa bana ke khilaya. I remember even when in the old kitchen, mom used to make dosa, Arun Bhai was so thoughtful and considerate of people's needs. Like, I feel like he would know what somebody needs even before they knew that they would need it. And because mom used to stand and make dosas for so long inside, he knew she would probably be dehydrated standing near the heat for so long. He would get, earlier in Galleria, there was this juice place. He would send someone and get juice for mom before we would go home, saying like, don't go empty stomach, have something and go. That was Arun Bhai for all of us, very thoughtful and considerate. I remember once I noticed that whenever it was any kid's birthday, he would call the kid and give them a chocolate for their birthday. And when I noticed this, I felt like I also want a chocolate from him when it's my birthday, even though I'm not a kid. But I did that. Like once when I went to the temple on my birthday after Mahapuja, I searched for Arun Bhai. I went to him and I said, Arun Bhai, aaj mera birthday hai, mujhe bhi chocolate chahiye. He grinned, he smiled. He didn't say a word, but he smiled. He went inside and he didn't just get me one chocolate. He got me this big family pack of 5 or 6 bars of chocolate in it. It's very difficult to believe this has happened. सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है, and but these are challenging times, and like Vashibai said, we have to live Arun Bhai. Easier said than done, but that's what it is. Thank you for listening to me. Jai Swaminarayan. जय स्वामीनारायण। अरुण भाई ने बहुत सारी स्मृतियाँ हमें दी है उनके जीवन से, और उनके जीवन से उन्होंने हमें ये भी सिखाया है, मतलब बहुत कुछ सिखाया भी है कि कैसे सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक का एक जीवन क्या होता है ये उनको देखकर पता चलता है। जैसा काका जी की सेवा में जब से वो आए थे, तभी सेवक की तरह आए, सेवक की तरह जिए और सेवक की तरह ही निकल गए। ऐसा उनका पूरा जीवन रहा। अब हम जब उनके संबंध में आए थे तो पंचगनी शिविर में तो उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, तभी तो हमें ये भी पता नहीं था कि सेवा किस तरह से करनी चाहिए। शाम का समय था जब सब स्वरूप भोजन कर रहे थे, तभी जीवन भाई नैपकिन लेकर खड़े थे सब स्वरूपों के पास में। तभी जीवन भाई को कुछ काम आया तो जीवन भाई ने नैपकिन मेरे पास दिया, तो जीवन भाई चले गए वहाँ से। तो सब स्वरूपों का भोजन भी हो गया, उन्होंने हाथ भी धो लिए और वो उठकर निकल भी गए वहाँ से। लेकिन मैं वैसे ही नैपकिन लेके खड़ा रहा। तब अरुण भाई ने देखा मुझे कि मैं कब से वैसे ही खड़ा हूँ। फिर अरुण भाई ने पास में आए, फिर उन्होंने समझाया कि बेटा नैपकिन आपके हाथ में जो दिया है स्वरूपों का हाथ धोने के बाद देना चाहिए था। मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि सेवा किस तरह से करनी चाहिए। जब से फिर अरुण भाई के साथ संबंध हुआ और उसके बाद फिर अरुण भाई से मतलब इतना अच्छा लगा हो गया था। उसके बाद मंदिर में तो उनके साथ में रहने का मौका भी मिला। तो तभी मंदिर के काम से जाना होता था, मुलुंड बांद्रा सिटी सर्वे ऑफिस, वहाँ के काम के लिए। तो अरुण भाई फिर जाने आने के लिए जो भी पैसा देते थे, या सब्जी लाना होता था, दूध लाना होता था, उसके लिए अरुण भाई पैसे देते थे। और उसका फिर वो पैसा जब खत्म हो जाए तब 2-3 दिन के बाद उनको हिसाब देना होता था। लेकिन जितने साल में रहा, कम से कम 3-4 साल, तो उसके अंदर मतलब बहुत सी बार ऐसा होता था कि वो हिसाब टैली नहीं होता था, क्या कुछ पैसा का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता था। तो अरुण भाई हर टाइम समझाते थे कि मुझे तो पता है आपने किधर खर्चा नहीं किया रहेगा, लेकिन फिर भी आप लिख के रखा करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो छोटा हिसाब है, लेकिन बड़ा हिसाब रहेगा तभी क्या होगा। इसके लिए वो खुद का एक प्रसंग बताते थे, जो उन्होंने मुझे कम से कम नहीं बोलते 4 से 5 बार उन्होंने खुद कहा है मुझे
कि जब भी स्टार्टिंग में पवई अपना मंदिर हुआ था तभी योगिनी बेन के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन आई थी और उसकी 1 साल हो गया था, तो तभी वो बिगड़ गया। तो उसका वारंटी में वो 1 साल के तक तो उसका वारंटी था, लेकिन जब भी कॉल सेंटर पे कॉल किया तो उन्होंने मना कर दिया कि 1 साल हो चुका है। लेकिन अरुण भाई को ऐसा लगता था नहीं, अभी भी 1 साल नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ दिन बाकी है। तो अरुण भाई ने फिर वापस अपनी पुरानी डायरी, वो हमेशा जो हिसाब की लिखते थे, तो उसके अंदर दिखा था, तो उसके अंदर और 3 दिन बाकी थे वारंटी खत्म होने में। तो अरुण भाई ने फिर वापस से पूरे बिल निकाले और फिर से वहाँ पे कॉल किया, और वो में कॉल करने के बाद फिर उनको डेट बताई कि भाई अभी डेट पूरा नहीं हुआ है, 1 साल के लिए अभी और बाकी है। तो फिर वो वॉशिंग मशीन उनको वारंटी में रिपेयर करके मिल गया। तो इसे एक छोटा सा प्रसंग था, छोटा सा प्रसंग मतलब इसके ऊपर से उन्होंने हमें सिखाया है कि मतलब हम लिख कर रखेंगे छोटा सा छोटा भी हिसाब, तो कभी मतलब वो कभी काम में आ जाए हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें तो मतलब जो भी हो व्यवहारिक आध्यात्मिक, तो हम हमारे जीवन में भी ऐसे जो टाइम हम बर्बाद कर देते हैं तो वो टाइम ही हम सेवा के लिए, भजन के लिए, जैसा अरुण भाई के जीवन से उन्होंने खुद जीकर हमें सिखाया है कि मतलब वो सुबह उठते से शाम तक उनका जो भी दिनचर्या थी वो भी हम अगर देखेंगे तो सुबह पहले तो उठते ही फिर आरती में आ जाते थे, खुद का भजन कर लेते थे, चाय नाश्ता करने के बाद फिर बाद में जो भी मंदिर का सेवा रहेगा उसके अंदर जुड़ जाते थे। उनको ऐसा 365 डेज में ऐसा एक दिन नहीं होता था कि जब भी सेवा ना हो, कुछ सेवा नहीं भी रहेगा तो ढूंढ के निकालते थे खुद के लिए, और वो खुद भी करते थे और दूसरों से करवाते थे। उन्होंने खुद के लिए तो नहीं किया लेकिन मंदिर के लिए करवाते थे, और हमसे इसलिए करवाते थे कारण कि हमें भी उसका थोड़ा पुण्य मिले और वो हमारे भी चैतन्य के उत्थान के लिए हमें काम आए। हमारे प्रारब्ध उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे कम कर दिए। अगर वो खुद तो देहातीत भाव में ही जिए, तो ऐसे हम उनके जितना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से थोड़ा एक वशी भाई ने जो भी सूत्र दिया है, लेट्स लीव अरुण भाई, तो जैसे अरुण भाई जिए लास्ट श्वास तक किसे, और भरत भाई ने जैसा कहा था कि वो सेवक की तरह आए, सेवक की तरह जिए और सेवक की तरह ही चले गए, तो ऐसा सेवा हमें सत्संग में करना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य अरुण भाई के बारे में तो क्या कहे, वो एक काका जी के इंस्ट्रूमेंट थे। सही सेंस में, ट्रू सेंस में ही वॉज अ स्पिरिचुअल टेक्नीशियन। उन्होंने इतनी सारी बातें सिखाई है हमें कि जो हम कभी नहीं भूल सकते। मेरे दादी दादाजी इटारसी रहते थे, तो इटारसी में काका जी, पप्पा जी और हरिप्रसाद स्वामी जी, ये तीनों स्वरूपों कभी रेयरली वो एक साथ मिलते थे। तो इटारसी में वो एक बार साथ में आए थे और उनके साथ अरुण भाई सेवक थे, तो तभी से नाता जुड़ गया है। तभी से अरुण भाई को सेवा करते हुए देखते आए हैं। जब मेरी दादी एक्सपायर हुए तो तभी भी उनका जो लास्ट क्रीमेशन का सब करना होता है, तो पापा को इतना कुछ पता नहीं था, वो आर्मी से आए थे रिटायर होके। तो अरुण भाई वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो मंदिर से वही पहले आए और उन्होंने फटाफट सब कुछ कर दिया। जब मेरे 2001 में दादी पास्ट अवे, इन 2005 माय ग्रैंडफादर पास्ट अवे, तो तभी भी अरुण भाई वॉज द फर्स्ट पर्सन। वो ही आए, उन्होंने सब कुछ किया। मतलब पूरे फैमिली में मेरे चाचा, मेरी बुआ, whoever इज नो मोर, तो अरुण भाई का वहाँ पे मतलब प्रेजेंट थे अरुण भाई तभी। पर अभी जब अरुण भाई का लास्ट मोमेंट था तो हम कोई भी नहीं आ सके। इट वॉज द वेरी सैड पार्ट। एक बार मैं क्षमा सूरत को लेके मंदिर आई थी, तो मतलब क्षमा वो छोटे थे शायद, और ऐसे ही जस्ट चलना सीखा था उन्होंने। तो अरुण भाई बैठे थे सोफा पे, तो अरुण भाई मेरे को बोलते हैं कि मतलब वो काफ़ी बार ऐसे मजाक भी करते थे,
तो अरुण भाई बोलते हैं कि ये दोनों झगड़ते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, तब तक तो ऐसे इतना कुछ झगड़ते नहीं थे। तो अरुण भाई बोले फिर क्या फ़ायदा? तो वो एक स्मृति रह गई, और अभी जब भी झगड़ते तो मुझे वो बात याद आती है। एक बार ऐसे ही सूरज छोटा था तो मैंने उसको गोद में लिया था, और ऐसे ही मंदिर जा रही थी तो अरुण भाई सामने से आए। तो अरुण भाई बोलते हैं अभी तो छोटा है, तू मेरे पास 5 साल बाद आना। बस यही प्रार्थना अरुण भाई और सभी स्वरूपों के चरणों में, कि आपने जो भी सिखाया है उसका हम 1% तो एटलीस्ट शुरुआत करें। और बस बल बुद्धि देना सहजानंद स्वामी महाराज।